میں کل سے فون کر رہا ہوں، آپ سے بات ہی نہیں ہو پائی۔ کہاں تو فون تو نہیں آیا۔ شاید آپ کی والدہ نے اٹھایا تھا تو ہو بتا رہی سکتا تھی ہے۔ اچھا۔ کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ ہوں۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی سی دین کی بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کون ہیں آپ؟ میں طلحہ بات کر رہا ہوں، جی کہاں سے؟ سنبھل سے۔ جی۔ جی، وہ اصل میں آپ کا نمبر گڈو بھائی ہیں کوئی؟ ہاں ہاں۔ ہاں، تو ان کے ذریعے ملا تھا کہ مول صاحب ہیں، تو میں نے سوچا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بات کر لیں گے۔ پیار محبت کا مسئلہ ہے اور دین کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی زور زبردستی کسی کی طرف نہیں ہے۔ تو یہی پوچھ رہا تھا میں اصل میں کہ یہ جو ہے توحید کی جو قسمیں ہوتی ہیں مول صاحب، وہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ توحید کی قسمیں مطلب؟ جی، توحید ہے نا، توحید اللہ ایک ہے، تو اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں نا؟ کیسی قسمیں؟ اس کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں کیا؟ مطلب پوچھ رہا ہوں میں، مطلب توحید کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں، اگر آپ کے خیال میں ہوتی ہو تو بتائیے، میرے ذہن میں تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ شرک کی قسمیں ہوتی ہیں، شرک کی؟ قسمیں کہاں سے ہوں گی؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں کہ اس میں قسم کی کیا وجہ ہے۔ اچھا توحید تو توحید ہے، یا شرک ہے تو شرک ہے، اس میں قسم کہاں سے ہوگی؟ اچھا، میرے علم میں اصل تو میں نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ۔ جی جی جی، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن جو ہے توحید کی قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں توحید کی۔ جی، تو کچھ جہاں اشارہ تک کیجیے، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں آ جائے۔ جی جی ہاں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تو تعلیم الاسلام جو ہے نا مفتی کفایت اللہ صاحب کی، جی جی جی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے توحید کی قسمیں 3 ہیں۔ چلے خیر، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، میں یہ تو پوچھ لے رہا دے تھا، کر کے یہ تو توحید تو صفات اور ذات کے اعتبار سے ہے، تو وہ تو قسم اگر چاہے بنانا تو بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ ہاں اور تو تو یہ تو اللہ کی سبھی نے ذات اور بنائی ہے۔ صفات میں توحید ماننا، یہ تو صرف توحید ایک ہی ہے۔ الگ بات ہے کہ صفات اور ذات کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے اگر کسی کو قسم بتائی جائے تو جی قسم جی بنے جی گی، جی نہیں تو نہیں جی بنے جی گی۔ جی، وہی کہہ رہا ہوں میں، جی وہی جی کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا اصل میں بچے کو، جیسے کہ آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اذان جو ہے آپ نہیں دینے دیتے بچے کو، تو نہیں، میں تو نہیں منع کرتا۔ بہرحال سننے آپ میں اپنی تو بات یہ ہے، کہیے، میں بتا رہا ہوں ابھی۔ جی جی، کہ آپ جو ہے وہ کوئی بچہ ہے 7-8 سال کا یا جو بھی ہے، جتنے بھی سال کا ہے، کہ آپ اس کو اذان نہیں پڑھنے دیتے، تو مجھے اصل میں تعجب یہ ہوا کہ مول صاحب جو ہے وہ ایک بچے کو اذان نہیں پڑھنے دیتے، جبکہ شریعت محمدیہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو 6-7 سال کا بچہ نماز بھی پڑھاتا تھا، اذان تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھی پڑھاتا تھا۔ اب وہ کون سا بچہ تھا؟ وہ بچہ تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ وہ 7-8 سال کی عمر میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، تو یہاں تو اذان کا مسئلہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اذان جو دینے سے منع کیا یا نہیں دینی چاہیے، یا نابالغ بچے کی اذان وہ جو ہے صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، جو بھی ہے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ نہیں، نماز جو پڑھاتا تھا تو آپ کے ہاں کیا ہے، نماز کتنا بڑا بچہ پڑھا سکتا ہے؟ جو قرآن اچھے سے جانتا ہو، اگرچہ عمر کی 7-8 کوئی سال، قید نہیں ہے ہاں آپ کے عمر یہاں؟ کی قید بتا رہا ہوں میں، 7-8 سال کا بھی بچہ پڑھا سکتا ہے۔ اچھا اچھا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں مول احناف صاحب، کے یہاں مسئلہ یہ ہے، سنیے میں ایک بات بتا دوں پہلے میں آپ تھوڑی کو۔ سی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں آپ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، میں بس کہہ رہا ہوں شریعت محمدیہ میں حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ ہمارے ایک یہاں کے نہیں تو ہیں، میں وہ یہاں تو رسول ٹھیکہ اللہ کے نہیں لے رہا صحابی ہوں ہیں۔ سب کا، میں بتا رہا ہوں جو ہمارا مطلب جس پر ہمارا عمل ہے اس کو میں بتا رہا ہوں بس۔ یہ جی جی تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت محمدیہ ہماری ہے یا آپ کی ہے، اس کو نہیں۔ میں جی، کہنا چاہتا ہوں جس پر ہمارا عمل ہے کہ 15 سال سے چھوٹا بچہ امامت نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو جی ہمارا عمل ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ جی جی جی، شریعت محمدیہ میں کیا ہے اور کتنا اختلاف ہے، یہ تو بہت بات آپ بڑھائیں گے تو بڑھے گی۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ آپ مجھ کو سے پوچھ شریعت رہے ہیں تو محمدیہ نہیں سے نہیں، ایک مطلب منٹ، نہیں ہے، مطلب میں آپ کو یہاں فقہ حنفیہ سے مطلب شریعت ہے؟ نہیں، ہاں تو وہی تو میں اسی کو ہمارا کہا ہوں، یعنی فقہ حنفی کو میں بتا رہا ہوں اچھا اچھا، کہ فقہ حنفی میں 15 سال کا بچہ نماز پڑھاتا ہے، جی جی اس سے بڑا پڑھا سکتا ہے، اس سے چھوٹا
नहीं, उसकी इमामत सही नहीं है, नाबालिग की इमामत सही नहीं है फ़िक़्ह हनफी में। जी और वो जो है अजान की बात है जहाँ तक, तो हमारे गांव में, मैं तो रहता भी नहीं था, मैं तो मदरसे था, आज तो फिलहाल घर ही हूँ। जी जी तो अजान के बारे में मैं कई आदमियों से सुना, उसके भाई ने बताया कि वह हमारे बच्चे को, अरे हमारे भाई, छोटे भाई को लोग मना करते हैं, क्या मसला है, सही बताइए। जी जी तो मैंने उसको फोटो, एक किताब का जो है सामने थी, उसको मैं भेज दिया। जी जी उसमें तो सफ़े अव्वल की बात थी, वो बहुत लंबी चौड़ी बात थी, उसके जी बारे में मैंने भेजा। तो उसमें एक मसला उसका भी था, फतावा की किताब थी। जी जी तो मैंने कहा कि ये तो बेचारा स्कूल में पढ़ने वाला, इसको क्या समझ में आएगा। मैंने फतावा की किताब का फोटो इसको भेज दिया कि लो भाई देख लो, यही मसला है। हाँ, अच्छा, मैंने वो तो उसको आपने भेज दिया मौलवी साहब, हम्म वो तो उनको भेज दिया और बता भी दिया और समझा भी दिया कि भाई हमारे यहाँ पर ये मसला है। हम्म तो जैसे कि मैंने आपसे अभी शुरू में कहा कि भाई हम्म हमारे यहाँ यानी शरीयत मोहम्मदिया में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तो ये है कि 7-8 साल का बच्चा भी जो है इमामत करवा सकता है, और उसकी दलील मैंने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से दी है। ऐसे ही आप जो बता रहे हैं कि 15 साल से कम का बच्चा या जो है नाबालिग बच्चा इमामत नहीं करवा सकता, ये आप जो है फ़िक़्ह हनफी के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन क्या फ़िक़्ह हनफी का ये जो मसला है वो शरीयत मोहम्मदिया के खिलाफ नहीं है? कैसे खिलाफ है, बताइए। शरीयत में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 7-8 साल के बच्चे के पीछे नमाज पढ़ी है, और बच्चे ने नमाज भी पढ़ाई है लोगों को, लेकिन फ़िक़्ह हनफी ने इस पर बैन लगा दिया। तो किस लिए बैन लगाया? ये उसके बाद फिर किसी का अमल साबित है, वो किस वक्त थे और किस वक्त की बात है, ये आपको पता है? हाँ बताइए, आप बता दीजिए। नहीं, वो किस वक्त की बात है। हजरत मुआज इब्न जबल कब पढ़ाते थे? जब उनके वहाँ कोई नहीं था पढ़ाने वाला, उनसे बेहतर अजान और नमाज के बारे में और कुरान के बारे में इल्म रखने वाला उनकी कौम में कोई नहीं था। जी 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 तो यही तो अब था यहाँ ना। पर जो है मामला, वहाँ यहाँ पर भी तो यही होता है भाई। अगर मौलाना इमाम साहब हैं या आप हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर आप हैं या इमाम साहब हैं जिनको मुतय्यन किया हुआ है, तो अगर वो होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। आप होंगे, आप जैसे अहले इल्म होंगे, हाफिज होंगे, कारी होंगे, तो फिर बच्चे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मजबूरी में हम बता रहे हैं। तो क्या मजबूरी में जो है बच्चा नहीं नमाज नहीं पढ़ा सकता है? अगर कोई नहीं है, इमाम साहब भी नहीं है, मौलवी साहब भी नहीं है, लेकिन एक बच्चा है 7-8 साल का या 9 साल का, वो अच्छा कुरान पढ़ना जानता है उन सब लोगों के मुकाबले में जो दूसरे वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या वो इस सिचुएशन में नमाज नहीं पढ़ा सकता है? नहीं, वो नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये जो नहीं का जो सवाल है वो शरीयत के कहाँ से लिया गया? कुरान की आयत से या हदीस से कहाँ से लिया गया है? देखिए, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ कि आपको फौरन जो है हदीस सुना दूँ। अच्छा और अगर उसके बारे में देखना, आपको बताना होगा, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा। अच्छा साफ बात ये है, मैं तो अभी खुद ही पढ़ ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत मझा या कोई आलिम हूँ, जी। मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो कोई अब मसला ये नहीं है, आप अगर देख के बताना चाहते हैं तो देख के बता दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप कम से कम मुझे बताइए इसका मैं माखज़ इतना क्या है। जानता हूँ कि माखज़ वही हदीस कुरान है, और क्या रहेगा। भाई कुरान, मैं वही तो पूछ रहा हूँ मौलवी साहब कि कुरान की किस आयत से ये मसला अखज़ किया गया है? कुरान की आयत से थोड़ी मसला होगा ये। अरे मैं मसला एक उसूल अहादीस से बता रहा है। हूँ, हाँ, मेरे भाई, ठीक है। मैं एक उसूल बता रहा हूँ कि कुरान की किस आयत से या हदीस रसूल की किस हदीस से ये मसला अखज़ किया गया है। मैं एक उसूल बता रहा हूँ कि भाई ये तो कहाँ से लिया गया है। आपको अगर हदीस आपके सामने सारी होती तो इतना जरूर मालूम होता कि इमामत का हकदार कौन है, और अल औला फल औला का इसमें कुछ एतबार है नहीं है। हदीस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हदीस में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो तुम कुरान अच्छा पढ़ना जानता हो वो नमाज पढ़ाए। जो आलम हो। हाँ, जो कुरान अच्छा पढ़ना जानता हो तो वो नमाज पढ़ाए। अरे, अच्छा पढ़ना जानता हो, आलम हो, उसे इल्म हो, उसे पता हो कि नमाज में क्या गलतियां हो जाएंगी, क्या किस तरह करना है, पूरा इल्म हो, नमाज का तरीका मालूम हो। हाँ, नमाज का तरीका, अब जाहिर सी बात है, कोई जो बंदा नमाज, मान लो मिसाल के तौर पर कोई बच्चे को अगर नमाज पढ़ाने खड़ा करेगा, नहीं, इतना तो पता होना चाहिए कि क्या फर्ज है क्या वाजिबात है, ताकि अगर फर्ज छूटे तो उसे पता लगे कि हाँ, फर्ज छूटने पर नमाज का इयादा है, वाजिबात के छूटने पर सजदे सहू है। इतना तो पता होना चाहिए ना। नहीं, कम से कम उसको नमाज का तरीका याद होना जरूरी है। हाँ, कम से कम तो इतना तो है ही। तो मजबूरी में जब कहीं कोई नहीं बाकी तो रहता ये है जो तो चीज आप एकदम बता रहे हैं, फराइज, वाजिबात, मुफ्सिदात, ये तो ठीक है। इमामत के लिए तो
इतना तो ज़रूरी है। और कभी तो आदमी जाहिल से जाहिल आदमी पढ़ा देता है वक्त पर। अगर 3-4 आदमी हैं और सब के सब बेघर पड़े हैं तो पढ़ाएगा आखिर उसी में से, कोई फरिश्ता थोड़ी आएगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि भाई इस तरह की अगर कोई मजबूरी है तो नहीं पढ़ा सकता बच्चा भी नमाज, तो आपने ये जो मसला बताया कि नहीं पढ़ा सकता है, तो इसी पर मैं पूछ रहा था आपसे। अगरचे आपके इल्म में नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, जब आपके इल्म में हो तो वो आयत या वो हदीस मुझे आप बता दें कि किस हदीस से ये मसला अखज़ किया गया है फ़िक़ह हनफ़ी में, क्योंकि ऐसा हमें है दिख रहा है कि वाज़े तौर पर। ठीक है, आपको दिख रहा है, आपको एतराज़ है, अगर आपके पास इतना इल्म है तो आप फ़िक़ह हनफ़ी पूरी खंगालिए कि क्या कमियां इसके अंदर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उलमा और ये किताबें लिखी हुई हैं, और जहाँ ढूंढा जाए तो ये हवाला भी मिलता है। अलग बात है कि मुझे नहीं है तो ये तो मेरी मेहनत और मेरी सलाहियत की कमी है, जी जी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे कोई एतराज़ जिस पर हनफियों ने कहीं अपने मनगढ़ंत की हो, कहीं ऐसा नहीं मिला। लेकिन जो है अहले हदीस हजरात इस पर एतराज़ बहुत ज़्यादा हनफियों पर क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक हदीस से मसला निकाल के बताते हैं किसी को, जाहिर सी बात है कि आप अपने घर में या किसी आम आदमी को बताएंगे तो आप अपनी हदीस जो हदीस है उसे समझ करके बताएंगे, जी जी। या कुरान से समझ करके बताएंगे, अल्लाह के वास्ते बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। और आप जितने बड़े आलिम हैं उनसे कहीं बड़े बड़े आलिम गुजर चुके, उन्होंने जो मसला निकाल दिया, चाहे इमाम अबू हनीफा हों, चाहे उनके शागिर्द हों, या उनके बाद के बहुत से अइम्मा आए, अहनाफ में आए और दूसरे मसलक में आए, तो इन लोगों ने जो मसला निकाला उसी का निचोड़ आज तक चल रहा है, वही वसूल आज तक चल रहा है। तो क्यों उसको इतना उछाला जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या वो गलत है क्या? देखिए मौलवी साहब, बात दरअसल ये है कि मौलाना अब्दुल हई लखनवी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हनफियों के, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के मौजूदा दौर में हनफियों में जितने भी आलिम हो, चाहे बड़े से बड़ा अल्लामा फहामा क्यों ना हो, लेकिन मौलाना अब्दुल हई लखनवी एक चोटी का पहाड़ थे, एक इल्म के पहाड़ थे वो, जिन्होंने हिदायत की शरह भी लिखी है। तो वो खुद हिदायत की शरह में ये कहते हैं, शुरू में मुकदमे में कहते हैं कि शाफई लोग हम पर ये ताना देते हैं कि तुम्हारे साहिब हिदाया ने, जो फ़िक़ह हनफ़ी की किताब है, ऐसे ऐसे मसाइल उसने लिख दिए हैं जो कुरान व हदीस से साबित ही नहीं है। ये बात नकल कर रहे हैं मौलाना अब्दुल हई लखनवी। तो ये एतराज़ तो अब से नहीं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह असलाफ के ज़माने से करते आ रहे हैं, और कर रहे हैं। मौलाना तो क्या अब्दुल मैं हई लखनवी ने, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या अइम्मे अरबा जो कहे जाते हैं क्या उनमें इख्तिलाफ नहीं है? हाँ उनमें इख्तलाफ है। इसका क्या मतलब, ये गलत है? नहीं नहीं, देखिए उनमें ये इख्तलाफ है। इज्तिहादी, देखिए इज्तिहादी मसाइल की बात अगर आप करेंगे तो दुनिया में जितने लोग उतना मसला, ये इज्तिहादी मसाइल हैं। हाँ इज्तिहादी मसाइल हैं। इज्तिहादी मसाइल में क्यों नहीं इख्तिलाफ होगा, आप बताइए क्यों नहीं होगा? देखें इज्तिहादी मसाइल में वहाँ तो इख्तलाफ करने की गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर कि अल्लाह के रसूल ने ज़ोहर से पहले की 4 रकातें हैं जैसे, तो कभी अल्लाह के रसूल ने 2 भी पढ़ी हैं और कभी 4 भी पढ़ी हैं। अब यहाँ पर 2 वाली से कोई इस्तदलाल करके कोई इमाम कहता है कि भाई ज़ोहर से पहले 2 हैं, तो बात समझ आती कि उस पर भी सही दलील मौजूद है। और अगर 4 वाली पर कोई इस्तदलाल करके कहे कि ज़ोहर से पहले 4 रकातें, तो बात समझ आती दोनों के इख्तलाफ बिल्कुल सही है और सही हदीसों से साबित है। लेकिन एक वो मसला है कि कुरान में या हदीस में कहीं है ही नहीं, और कुरान व हदीस के खिलाफ एक मसला बताया जाए, तो वो मसला मैं समझता हूँ इज्तिहादी नहीं है, बल्कि वो तो मैं समझता हूँ इज्तिहाद अगर है भी तो वो उनकी गलती है, इज्तिहादी गलती माना जाएगा उसको। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि जो मसला कुरान और हदीस में नहीं उसको आप क्या करेंगे? वो तो एक इज्तिहादी मसला हो गया ना फिर तो फिर उस पर कीचड़ उछालने की जरूरत ही नहीं है। इस आपका मसले में इज्तिहाद आपको समझ में आया तो अमल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। देखें ये जो ऐसा मसला तो नहीं है, कि वो किताब में लिख करके चले गए तो हम दांत से पकड़े हुए हैं कि नहीं वो जो लिख के गए वही कुरान हदीस बन गया, ऐसा तो नहीं है। असल झगड़ा इज्तिहादी मसला, असल झगड़ा तो यही है। एक मिनट, नहीं आप नहीं समझते। इज्तिहादी मसला ये है, बहुत से इमाम अबू हनीफा का बहुत सा ऐसा मसला है जिस पर हनफी लोग अमल नहीं करते, बल्कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के कौल पर अमल करते हैं। इसी तरीके से उन तीनों के मसलक को भी, उन तीनों के मसाइल को, इज्तिहादी मसाइल को नहीं अमल किया जाता है। अनाफ में बहुत ऐसा भी है, बाद के अइम्मा ने हालात के एतबार से जो उन्हीं उसूल की रोशनी में जो मसाइल निकाले इज्तिहादी, उन पर अमल है। ऐसा नहीं है कि बस जो इमाम अबू हनीफा कह के गए वही नहीं। मसलक अनाफ का मतलब ये है कि उस उसूल के मुताबिक जितने उलमा आए
उनकी बातों को लिया जाता है आज तक। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें इमाम अबू हनीफा का ही कौल हो। तो ऐसा नहीं है कि साहिब हिदाया ने लिख दिया, अगर गलत लिखा तो उसको भी लिया जाएगा, उसको एकदम कुरान हदीस की तरफ समझा जाएगा, नहीं, उनको कहा जाएगा कि इसमें भी गलती का इम्कान है। हाँ। इज्तिहादी मसाइल है, आज के एतबार से अगर वो मसला फिट नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। इज्तिहादी मसाइल है, आज के उलमा जो हैं तो इज्तिहाद के लायक वो इज्तिहाद करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ मौलवी साहब आपसे कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और उसूली बातें कह रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मसला आप बता रहे थे अभी फ़िक़्ह हनफिया से कि भाई हमारे यहाँ पे नाबालिग बच्चा जो है वो नमाज नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि मैं तो आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल पेश कर रहा हूँ, ठीक है, और आप फ़िक़्ह हनफी पेश कर रहे हैं मुझे। तो मैं आपसे, पेश किया हूँ। आपने नहीं कहा है कि अभी हमारे यहाँ नाबालिग बच्चा नमाज नहीं पढ़ा सकता, जबकि मैं तो हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मना कर रहा है फ़िक़्ह हनफिया, चाहे वो इमाम अबू हनीफा का हो, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पर जो मना कर रहे हैं तो मना करने पर कोई दलील हमें नजर नहीं आ रही। हाँ तो ठीक है, तो आप उसकी जो है इजाजत की हमारे मसलक जो मैंने हनफिया का मसलक पेश किया, उस मसलक पर आप मेहनत कीजिए, देखिए कि वाक़अतन हनफियों ने जो मसला निकाला है ये हदीस कुरान से है या खिलाफ है, उसके आप जिम्मेदार हैं। अब मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी कि पूरा मसलक बताऊं। कोई मसलक छुपा हुआ तो अहनाफ का मसलक छुपा हुआ है नहीं, या कोई भी मसलक छुपा हुआ नहीं है आज के दौर में। तो अगर मुझे अहले हदीस के बारे में कुछ पता करना है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपकी किताबों को देखूंगा। नहीं, हमारी किताबें तो कुरान हदीस है। अगर आपको कुछ नहीं, हमारी रामायण है क्या? हमारी रामायण है क्या जी? आपकी कुरान हदीस है तो हमारी रामायण है क्या? आप ही देख लें, मैं तो हदीस पेश कर रहा हूँ और आप मुझे फ़िक़्ह हनफिया पेश कर रहे हैं।